Okay, so in the last lecture we have seen the basic introduction about sheet metal operations or press working operations. We have considered the definitions of various kinds of sheet metal operations and what is a press, how operation is performed in sheet metal operation. In this lecture we will see specifically the shearing operation, and we will try to solve some numericals also in this lecture. So shearing is a sheet metal operations in which a portion of metal's sheet metal is cut using die set, which is in two parts. One part is known as punch, another part is known as die. Normally die is placed in bottom and punch comes from top. That's why these two portions of the die are sometimes known as lower shear and upper shear also, because these are performing shearing operations. Okay, since in shearing operations the dies and punch used are also known as shears, and these are in two parts. So the bottom parts, which is generally known as die, or over which sheet is placed, that portion is known as lower shear, and upper portion of the die, which is a punch, which applies force for shearing operation, that shear is known as top shear. So lower shear, upper shear, top shear, bottom shear are there. That means in terminology we can use these terms also instead of die and punch also. So you should keep all these things in mind. आया समझ में नहीं आया? In shearing operation, whatever dies which are using, ठीक है, it is in a set. One is known as die, another known as punch. In shearing operation, these die set are known as shears. इनको die को अपन क्या बोल देते हैं? Shears बोल देते हैं. Lower portion of is known as lower shear and top portion is known as upper shear. ठीक है? So punch becomes upper shear and die becomes lower shear in this case. Okay. So sheet metal is pressed between two shearing blades so that the fracture is initiated at the corner points. In the last lecture I told you that the shearing operation or shearing action completes in three stages. Initially plastic deformation starts, then crack formation, and finally shearing is done. So sheet metal is pressed between two shearing blades so that the fracture is initiated at the corner points. So when force applied by the punch is beyond the yielding point of the material, then plastic deformation will start, and at some point fracture will be initiated, fracture will be started. जिसको हम क्रैक भी बोलते हैं. क्रैक कहीं पर स्टार्ट होगा, and as the punch applies force continuously onto the metal which is going to be sheared, in that case that crack widens. शुरुआत में जो punch force apply करता है, that punch applies force in such a manner that plastic deformation starts. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने के साथ साथ वहाँ पे एक हल्का सा क्रैक कहीं पर डेवलप होता है, एंड जैसे जैसे पंच फोर्स अप्लाई करता रहता है वो क्रैक वहाँ वाइडन होता रहता है. अल्टीमेटली एक टाइम आता है जहाँ पे मेटल का शियर हो जाता है और कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है. सो द फ्रैक्चर ऑन शीट फर्दर प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड्स विद द मूवमेंट ऑफ द अपर शियर. अपर शियर मींस पंच. फाइनली results in the separation of the slug. Slug means material which is of no use, ठीक है, from the sheet. So whatever material which be removed in the punching operation, that punch out portion is known as slug in this case. तो एक हल्का सा फिर से वो brief introduction है about shearing, how shearing takes place. The force will be applied by the punch, it is also known as upper shear, ठीक है ना. Force will be applied in such a way that plastic deformation will start. At some point in the sheet, fracture or crack will initiate, and as the punch goes on applying the force, the crack will widen up, and ultimately shearing of the material will take place. So whatever amount of material which is removed from the die, from the sheet metal, that is actually a scrap, and that is also known as slug. So slug will be removed from the sheet. Now for performing shearing operation, clearance is important. Clearance means gap. You can say it is the difference in dimensions of the die and the punch. Since it is the punch which moves inside the die, that's why diameter of die, inside diameter of the die must be bigger than outside diameter of the punch.
So difference in inside dimension of the die and outside dimension of the punch is known as clearance, and clearance is necessary while performing shearing operation. One more thing, when we perform shearing operation, in that case it is necessary that corners of the punch applying the force must be a sharp edge. Whether we are going to cut the sheet in two halves or we are going to make a circular hole, in that case corners of the punch must be sharp edges. ठीक है ना, it is necessary. And proper clearance or gap should be there between inside dimension of the die and outside dimension of the punch. ठीक है ना, the clearance given provided between die and punch or between shears, lower shear and upper shear, is dependent on two things, that is the sheet metal, material of the sheet metal, and thickness of the sheet metal. By observation, it can be written as clearance is written as 0.003 into T, which is thickness of the sheet metal in mm, into tau, which is shear strength of the sheet metal in mpm. So it is square root of the tau. C is equal to 0.003 T into square root of the tau. It will give you the clearance between die and punch. So whether we are going to make a punch, that means whether we are going to performing a punching operation or blanking operation, we have to calculate the dimension of the punch and die based on this clearance. आपको समझ में आया नहीं आया? एक्चुअली क्लियरेंस क्यों जरूरी है? यदि हम क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पंच डाई के अंदर मूव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. फॉर दैट पर्पज inside dimension of the die is always more than or greater than outside dimension of the punch. पंच डाई के अंदर जाएगा, इसलिए डाई के डायमेंशन यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए. एंड इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस कितना होना चाहिए, फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. दिस इज क्लियरेंस ऑन वन साइड ऑफ द डायमेंशन. यदि ये डायमीटर है तो इसका डबल हो जाएगा. यदि हम पॉकेट रेक्टेंगुलर पॉकेट कट करना चाह रहे तो हर साइड में इतना इतना क्लियरेंस हमको लेना पड़ेगा. एंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन, दिस फॉर्मूला, इट इज क्लियर that clearance is dependent on sheet thickness and sheet metal. ये sheet metal जिसकी उतनी shear strength होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है. इसमें एक important conclusion अपन निकालेंगे कि जब हम punching operation कर रहे हैं और whether we are going to perform blanking operation, then how we can decide the dimensions of the die and punch, keeping in mind the clearance. So that we will consider later on. Okay. Now, if you have any doubt, you can unmute yourself and you can ask. यदि आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो. नहीं है तो अपन आगे चलते हैं. ओके. इन दिस फिगर आई हैव ट्राइड टू शो यू द क्लियरेंस. नाउ इट इज क्लियर इन दिस केस. ओके. दिस इज वन पोर्शन ऑफ द डाई. This is punch which is descending downwards. Okay, and this is the die which is getting, this is the sheet metal which is getting seared or cut off. Okay. So here you can see that there is some gap between the outside dimension of the punch and inside dimension of the die. ये पंच इधर भी होगा और जैसी डाई का पोर्शन इधर है इधर भी आएगा, तो इनके बीच में कुछ प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए. वो क्लियरेंस कितना होगा उसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख चुके हैं. एंड दिस क्लियरेंस इज डिपेंडेंट ऑन शीट थिकनेस एंड शीट मेटल. ओके. And this clearance is to be provided on each side. एक साइड अपन जब हम टू डायमेंशनल फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो जितना क्लियरेंस यहाँ पे उतना क्लियरेंस इधर भी रहेगा. ओके. और इसके अलावा यहाँ पे एक एंगुलर क्लियरेंस भी दिया जाता है. देखो यहाँ पे कुल आपको 3 फिगर दिख रहे होंगे. ये एक बेसिक फिगर है जो कि शेयरिंग आपको समझा रहा है. In this figure you can see the clearance between dimensions of the die and the punch, and in this figure you can see the angular clearance also. ठीक है ना. यदि हम पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं या ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये डाई का पोर्शन सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, कुछ दूरी के पश्चात जैसे ये वो पोर्शन है जो स्ट्रेट रहेगा और इसके पश्चात ये यहाँ पे हल्का सा स्लांट या यहाँ पे टेपर प्रोवाइड किया जाएगा. दिस टेपर इज नेसेसरी फॉर स्ट्रिपिंग एक्शन फॉर रिमूविंग पंच्ड आउट पोर्शन फ्रॉम द डाई. होता क्या है,
जब ये पंच या अपर शियर पंचिंग ऑपरेशन कंप्लीट करता है तो अपने रिटर्न स्ट्रोक में वापस लौटेगा। अब जब ये वापस लौटेगा और उस केस में यदि ये डाई की पोर्शन स्ट्रेट है, डाई की वॉल्स स्ट्रेट है, तो इसकी बीच का जो स्लग है या जो ब्लैंक है वो इसके साथ फंस जाएगा और इस पंच के साथ ऊपर आने की कोशिश करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि उसमें हल्का सा स्प्रिंग बैक होता है, स्प्रिंग बैक की वजह से वो फैलता है और फैलने की वजह से इसके साइड में चिपक जाता है। कौन सी चीज चिपकती है? जो यहाँ पे कट होके बाहर निकल रही है। इट कैन बी स्लग, इट कैन बी पंच। इस स्लग कब बोला जाएगा? जब हम पंचिंग ऑपरेशन करेंगे। और ब्लैंक कब बोल जाएगा? जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन करेंगे। तो उस केस में इस साइड से चिपक जाता है जो यहाँ पंच आउट पोर्शन होता है, तो और वो साथ साथ ऊपर जाने लगता है, तो ये अलग से फोर्स अप्लाई करता है, फ्रिक्शन आता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? वी प्रोवाइड सम एंगुलर क्लियरेंस और टेपर ऑन टू द साइड ऑफ द डाइज। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। दैट यू कैन सी इन दिस फिगर। सो इन shearing of the metal is elastically deformed and then it is plastically and finally separate from sheet. मतलब जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा initially that force will be of plastic nature. Then when force exceeds beyond yield strength of the material, then plastic deformation will occur and finally there will be separation of the sheet metal from the sheet. The slug will spring back due to the release of this stored elastic energy. Actually होता क्या है कि जो पंच्ड आउट पोर्शन है, जिसको हम स्लग बोले या ब्लैंक बोले, उसके अंदर दो प्रकार के डिफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहां पे परमानेंटली शेयरिंग के रूप में आ चुका है, लेकिन जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जैसे ही हम लोड पंच के थ्रू हटाते हैं तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो जितना अमाउंट में भी सेव रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे स्प्रिंग बैक होता है, वो फैलता है, ठीक है ना, और वो साइड में चिपक जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इनटू द पंच्ड आउट पोर्शन। द ब्लैंक और स्लग विल क्लिंग टू डाई फेस। जो ब्लैंक होगा या स्लग होगा वो डाई फेस के साथ चिपकेगा अनलेस डाई ओपनिंग इज एनलार्ज, जब तक कि हम डाई के ओपनिंग को बढ़ाते नहीं हैं। सो दिस एनलार्जमेंट इज नोन एज एंगुलर क्लियरेंस और ड्राफ्ट और टेपर। तो नॉर्मली वॉल कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए डाई की, ये सारी की सारी, लेकिन कुछ दूरी के पश्चात हम इनको तिरछा कर देते हैं, टेपर कर देते हैं या ड्राफ्ट वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज नोन एज एंगुलर क्लियरेंस। दिस एंगुलर क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड and it depends upon the materials, that means sheet metal, the thickness and shape of the stock। मतलब सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर शेप है स्टॉक की, वो कैसे हम दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। The value of the angular clearance is from 0.25 to 0.75 degrees per side। हर तरफ ही लगभग इतना होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। This is hardly 0.25 to 0.75 degree. Maximum value can be 2 degree. In some books it is written as 1.5 degree। हम लेके जा सकते हैं कि it can vary from 0.25 to 2 degree। ओके, तो एक तो हमें क्लियरेंस देना है और दूसरा हमें एंगुलर क्लियरेंस भी देना है। तो क्लियरेंस मतलब यहाँ पे जब पंच आएगा तो उसके डायमेंशन के बीच की बात हो रही है, और एंगुलर क्लियरेंस का मतलब होता है कि जो डाई हमने यहाँ पे बनाई है उस डाई की जो वर्टिकल सरफेसेस उनको हम हल्का सा टेपर कर देंगे या ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। और वैल्यू कितनी होगी? 0.05 डिग्री 0.25 डिग्री टू 2 डिग्री ओनली मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपको यदि कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दो प्रकार के। हाँ बोलो। पंच रहता है उसमें भी सर एंगुलर क्लियरेंस दे सकते हैं क्या पंच में? पंच में नहीं है डाई। यदि पंच में हमने एंगुलर क्लियरेंस दे रहा तो जिस टाइप की पंच होगा उस टाइप कटेगा, तो पंच में नहीं दिया जाता है। दिस इज गिवन इन डाई। एनी डाउट? सर मतलब ये इसमें डाई में देने से शीट सीधी कटती है? देखो दो चीजें यहाँ पे, दो प्रकार के क्लियरेंस हैं। एक हमने क्लियरेंस बोला, वो ये दिखा रहा है कि इस सीट डाई के इनसाइड डायमेंशन और पंच के आउटसाइड डायमेंशन में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो क्लियरेंस हो गया, ठीक है, जिसको अपन ने सी लिखा था। और ये जो टेपर है दिस इज नोन एज एंगुलर क्लियरेंस। ये हम किस में दे रहे हैं? डाई में दे रहे हैं। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि यदि क्लियरेंस नहीं देंगे तो यहाँ पे जो पंच आउट पोर्शन होगा, चाहे वो हमारे लिए स्क्रैप या स्लग हो, चाहे वो हमारे लिए ब्लैंक हो, तो वो यहाँ पे स्प्रिंग बैक होगा, उसमें हल्का सा उसकी साइज में बदलाव होगा, चेंज मतलब बड़ा होगा हल्का सा, और वो यहाँ पर डाई के साथ चिपक जाएगा।
तो जब ये पंच ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस डाई में क्लियरेंस देना पड़ता है, एंगुलर क्लियरेंस देना पड़ता है। तो दो प्रकार के क्लियरेंस हो गए, एक डिफरेंस इन डायमेंशन आ गया जो कि डिफरेंस है, डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ द डाई एंड डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ द पंच, और दूसरा है एंगुलर क्लियरेंस जो कि टेपर है, किसकी वॉल पे है, ये टेपर प्रोवाइड किया गया डाई की वॉल पे प्रोवाइड किया गया। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर। आगे चलें, ठीक है। नाउ कम्स द स्ट्रिपिंग फोर्स। ये थोड़े से कैलकुलेशंस हैं जो इसमें अपन लगेंगे, ठीक है ना। स्ट्रिपिंग फोर्स क्यों जरूरी है और क्या होता है, देखो स्ट्रिप का मतलब होता है हमें अलग करना, दिस इज नॉट द पंचिंग फोर्स। Punching force is the force which is necessary to make a punch or cut a blank or make a shear. हम चाहे shear करें, चाहे punching करें या blanking करें, उसको करने में पंच जो फोर्स अप्लाई करता है that is known as punching force. Stripping force का मतलब होता है कि when punching operation is over, then in order to remove the punched out portion, some amount of force is needed and that force is applied by stripper. कल आप याद करो, कल वहां पे एक स्ट्रिपर भी लगा था, ये ब्लैंक होल्डर लगा हुआ था। ब्लैंक होल्डर का फंक्शन होता है कि वो सीट को अपनी जगह पे बना के रखेगा ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। वंस कटिंग इज ओवर, पंचिंग इज ओवर, उसके बाद ब्लैंक जो डाई रहे, सॉरी अपर डाई जो रहेगी, जिसको अपन पंच बोल सकते हैं या अपर सीयर बोल सकते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ चिपका हुआ आपका जो स्लग है या ब्लैंक है वो भी ऊपर की तरफ आ सकता है। उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिपर हम लगाते हैं और स्ट्रिपर इतना फोर्स अप्लाई करेगा तब जाके वो पंच्ड आउट पोर्शन वहां पे रिमूव हो पाएगा, रुक पाएगा, ठीक है ना। सो दिस स्ट्रिपिंग फोर्स इज गिवन एज K into L into T, where L is the perimeter of the cut. यदि ये होल है, सर्कुलर हो है तो पाई डी आ जाएगा, यदि रेक्टेंगुलर हो तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर हो जाएगा वहां पे। ओके, T is the stock thickness, sheet metal की thickness, and K is the stripping constant. This constant is dependent upon type of the material and its thickness also. तो जब हम मेटल की कटिंग करने जाते हैं तो उस केस में K हमें वहां पे पता होता है, यदि इनकेस कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें आया तो यहाँ पे हमें उसमें दिया जा सकता है। एक सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज इसकी ली हुई हैं और कार्बन स्टील, यदि कार्बन स्टील की सीट है जो कि 1.5 mm से कम थिकनेस की है, उस केस में K कितना लिया जाना है, इट इज टेकन एज 0.103. On the other hand, for same carbon steel material, if the thickness of the sheet is more than 1.5 mm, then its value should be taken as 0.0207. Okay, so we will put this value, या तो न्यूमेरिकल में दी गई है, we can determine L by the dimension, यदि वो सर्कुलर है तो पाई डी हो जाएगा, अदरवाइज पेरीमीटर आ जाएगी वहां पे, and T is the thickness of the sheet metal. Okay, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, we can calculate the stripping force. Then comes the punching force. अब पंचिंग फोर्स क्या होता है तो मैंने आपको पहले से बोला हुआ है, ठीक है। पंचिंग फोर्स होता है कि विच इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ पंच और कटिंग अ ब्लैंक। वो पंचिंग हो, ब्लैंकिंग हो, शेयरिंग हो, ये सारे के सारे एक ही एक यहाँ पर दे रखा है, फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू LT into टाउ, वेयर L इज द पेरीमीटर, T is the thickness, stock thickness, and tau is the shear strength of the material, shear stress of the sheet metal. It is given for a particular metal to be cut. यदि हमें shear stress नहीं दी गई है तो shear stress can be expressed in terms of ultimate tensile strength, ठीक है। It can be taken as 0.5 to 0.7 times, this tau can be taken as 0.5 to 0.7 times sigma. नॉर्मली ये 6 या 0.6 या 0.7 यहाँ पे ली जा सकती है, बुक में अधिकतर जगह पे 0.7 टाइम्स ली गई है, ठीक है। टाउ इज टेकन एज 0.7 टाइम्स 7 टाइम्स द सिग्मा, दैट मींस शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 70% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका यूज करके हम पंचिंग फोर्स भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमिन स्ट्रिपिंग फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर टू सेपरेट द पंच्ड आउट पोर्शन फ्रॉम द शीट मेटल एंड द अपर सीयर। अपर सीयर का मतलब पंच, उससे अलग करने के लिए जरूरी हो जाएगा। ओके, तो इन फॉर्मूले में यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर अनम्यूट करके, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। नो क्वेश्चन?
ठीक है ना? नो क्वेश्चन। ओके, ना अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके सामने आया जा रहा है, इसको अपन को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना? बिकॉज क्लियरेंस इज इन्वॉल्व इन दिस केस। क्लियरेंस का मतलब होता है द डिफरेंस इन डायमेंशंस ऑफ द डाई एंड द पंच। वी कैन परफॉर्म ब्लैंकिंग ऑपरेशन, वी कैन परफॉर्म पंचिंग ऑपरेशन, ठीक है? बट यदि हम पंचिंग कर रहे हैं या ब्लैंकिंग कर रहे हैं तो उस केस में डाई और पंच के डायमेंशंस में हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है? ब्लैंकिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो पंच्ड आउट पोर्शन है दैट इज ऑफ सम यूज टू अस। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? सर एक बार रिपीट कर ब्लैंकिंग दीजिए सर। ब्लैंकिंग का मतलब होता है कि जो पंच्ड आउट पोर्शन है दैट इज ऑफ सम यूज एंड रिमेनिंग सीट इज ऑफ नो यूज। दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू अ पंचिंग ऑपरेशन, ठीक है? पंचिंग का मतलब होता है टू मेक अ होल ऑफ एनी शेप एंड साइज इन अ शीट मेटल। In that case, punched out portion is a waste. It is a scrap. But in case of blanking operation, the punched out portion is of our use and sheet metal is of our no use. That sheet metal is scrap. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यदि हमें बोला गया यस है कि सर। पंचिंग ऑपरेशन करना है तो जो पोर्शन कट के अलग हुआ है, पंच्ड आउट पोर्शन है, वो हमारे लिए स्क्रैप है। आप इसको याद रख सकते हो, जो पेपर की शीट पर हम पंचिंग करते हैं उससे। पेपर की शीट हमारे काम की होती है, पंच होल इसलिए हम बनाते हैं वहां पर ताकि हम उसको फाइल में लगा सकें, फाइलिंग कर सकें, ठीक है ना? सो पंचिंग ऑपरेशन इज सिमिलर टू दैट। When we perform a punching operation, then punched out portion or whatever material which is removed, that is of no use and that is a scrap. On the other hand, if we are going to perform a blanking operation, then punched out portion is of our use and remaining sheet is of our no use. ठीक है ना? ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे हमें पंचिंग ऑपरेशन के जो डाई और पंच इस्तेमाल वगैरह उसके डायमेंशंस निकाल रहे हैं, और ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पंच और डाई के डायमेंशंस वहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है? क्लियरेंस को हम मान लेते हैं कि ये सी है। क्लियरेंस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? इट इज सी। डायमीटर भी mm में है और क्लियरेंस भी कितना mm है। फर्स्ट केस इज सपोज वी आर गोइंग टू परफॉर्म पंचिंग ऑपरेशन, ठीक है ना? सो आवर एम इज टू कट अ होल ऑफ a particular size in a sheet metal using a die and a punch. In this case, the punch diameter is equal to dh. इसका याद रखना कि हमें बोला गया है कि we have to cut a hole of 20 mm diameter, we have to punch a hole of 20 mm diameter in a sheet metal, then punch diameter will be taken as 20 mm. बात समझ में आई नहीं आई? यदि हम परफॉर्म पंचिंग, नहीं आई सर, एक बार रिपीट हमें कीजिएगा। बोला गया है कि वी हैव टू परफॉर्म अ पंचिंग ऑपरेशन ऑन अ शीट मेटल, ठीक है ना? एंड द डायमीटर ऑफ द पंच इज 20 mm। जो होल हमें बनाना है शीट में कितने mm का है? 20 mm का है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। तो जो 20 mm का हमें होल कट करना है उसके लिए जो पंच लिया जाएगा उसका डायमीटर भी कितना होगा? 20 mm होगा। किस केस यस सर। में? पंचिंग के केस में। पंचिंग के केस में जितना होल का डायमीटर हमें कट करना है वो डायमीटर पंच का होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है होल पंच डायमीटर इज इक्वल टू डी एच। एच इसलिए क्योंकि होल बना रहे हैं हम, इसलिए पंचिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको आप डिफरेंशिएट कर सको इसलिए लिखा गया है, ठीक है? एंड होल डाई डायमीटर, अब इसके लिए जो डाई आएगी उसका डायमीटर कितना होगा? तो इसमें एक हल्की सी करेक्शन है, उसको सुधारो, मैं सुधार रहा हूँ यहीं पे। दिस इज एच DH और ये प्लस 2 हाँ C। डी एच ही है ये, ठीक है ना? यस सर। यस हाँ। सर, होल से थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्लियरेंस। अब जो डाई रहेगी, डायमेंशन ऑफ द डाई मस्ट बी मोर देन डायमीटर ऑफ द पंच। तो पंच का डायमीटर हमने फिक्स कर दिया, कितना हो गया? डीएच हो गया, 20 DH mm के हो गया। बराबर हो गया। तो ऑब्वियसली जो डाई होगी उसका डायमीटर पंच से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। हमने उसको कितना ले लिया? चूंकि भले ये सर्कल है या कोई, हमें जो क्लियरेंस देना है वो दोनों तरफ देना है। तो जब हम 2 डायमेंशनल फिगर देखते हैं तो 2 डायमेंशनल फिगर में हमें जो क्लियरेंस दिखाएगा वो पंच के दोनों तरफ दिखेगा,
पंच का डायमेंशन छोटा होगा, डाई का बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे इसको 2C लिखा गया है, ठीक है ना, 2 times द क्लियरेंस. So hole punch if we are going to perform a punching operation, then आप याद रखो, बिल्कुल रटो इस चीज को, ये रटने की चीज है कि पंच का डायमीटर कितना होगा, जितना होल का हमें पंच करना है, डायमीटर का पंच करना है होल, ठीक है ना, और डाई का डायमीटर कितना होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ द अपर शियर एंड लोअर शियर. तो ये अपर शियर है पंच और ये लोअर शियर है, ठीक है ना. दूसरा केस, सपोज वी हैव टू परफॉर्म पंचिंग ब्लैंकिंग ऑपरेशन. ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या है कि जो पोर्शन कट के निकलेगा वो हमारा काम करेगा, शीट मेटल हमारे काम के नहीं, ठीक है ना. तो उस केस में जो डाई का डायमीटर होगा, हमें बोला गया कि 20 mm की आपको ब्लैंक कट करना है. क्या बोला गया है कि वी हैव टू कट अ ब्लैंक ऑफ 20 mm डायमीटर. तो उस केस में जो डाई होगी, डाई का डायमीटर 20 mm होगा. आई बात समझ में. डाई के डायमीटर कितना है, 20 mm. इसको हमने लिख लिया ब्लैंक डायमीटर डीवी, डी सबस्क्रिप्ट बी. अब जब डाई का डायमीटर 20 mm है तो पंच का छोटा होना चाहिए. कितना छोटा होगा, -2C, ठीक है ना. तो इन दोनों में अपन को अंतर समझना है कि जो पंचिंग ऑपरेशन होगा उसमें पंच का डायमीटर हमें होल का डायमीटर के बराबर होगा, और यदि हमें ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना है तो डाई का डायमीटर ही ब्लैंक डायमीटर होगा, ठीक है. और जो पंच का डायमीटर निकलेगा इससे छोटा आ जाएगा. तो इसमें यदि कोई डाउट हो तो बहुत अच्छे से समझो और मुझसे अभी पूछ लो. नो सर, कोई डाउट नहीं. सबको समझ में आ गया. ब्लैंकिंग ऑपरेशन वाला थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए सर. देखो, पंचिंग समझ में आता, पंचिंग हम क्या कर रहे हैं, होल कट कर रहे हैं, और जो मटेरियल कट के निकल रहा है वो हमारे लिए स्क्रैप है, वो काम का नहीं है. जो सीट बची है वो हमारे काम की है. इसको आप रट लो कि जो पेपर पे अपन पंच करते हैं तो छोटे छोटे गोल टुकड़े के हो रहे निकलते रहते हैं पेपर के, वो हमारे काम के नहीं होते हैं, ठीक है. सो सीट मेटल ऑपरेशन का जो पंचिंग ऑपरेशन है, इट इज सिमिलर टू दैट. तो जो पोर्शन कट होकर रिमूव हुआ है दैट इज ऑफ नो यूज, दैट ऑपरेशन इज नोन एज पंचिंग ऑपरेशन. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें लॉक बनाना है, तो लॉक के लिए जो पैड रहेगा वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन के द्वारा सीट मेटल से कट किया जाएगा. अब हमारा पर्पज अलग हो गया, हमें सीट मेटल से एक पैड कट करना है, उस पैड से हमें आखिरी में जाके क्या बनाना है, ताला बनाना है, लॉक तैयार करना है. घरों के जो इस्तेमाल होते हैं ना, होते हैं गोल वाले, राउंड वाले, कैसे भी हों, ताला तैयार करना है. तो यदि हमें बोला गया कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन है तो ऑपरेशन बिल्कुल वही है, डाई है, पंच है, लेकिन उनके डायमेंशंस में डिफरेंस आ जाएगा. तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें हम डाई के डायमीटर को फाइनल डायमीटर मानेंगे. मतलब हमें बोला गया कि 20 mm का ब्लैंक कट करना है तो डाई का डायमीटर 20 mm हो जाएगा. अब डाई बड़ी साइज की है, पंच छोटा साइज का है, तो ऑब्वियसली पंच का डायमीटर कितना निकलेगा, dv - 2C इन दिस केस. ओके ओके सर, आगे समझ. और कोई डाउट किसी को. अब यहाँ पे हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हालांकि मैंने वो कर रखा है, तुमको दिख रहा होगा, होना मैं तुम्हें, चलो ठीक है देख लो, कोई बात नहीं. एक क्वेश्चन आप नोट कर लो अपनी सीट पे जब तक, इतनी देर में, फिर अपन इसको समझ लेते हैं. ये डिटरमिन द डाई एंड पंच साइजेस फॉर ब्लैंकिंग a circular disc of 20 mm diameter from a C20 steel sheet whose thickness is 1.5 mm. Given shear stress of C20 steel is 294 MPa. डाई और पंच की डायमेंशन यहाँ पे हमें निकालने हैं. तो कौन से ऑपरेशन के लिए निकालने हैं, ब्लैंकिंग लिखा है इसमें, ब्लैंकिंग का सर्कुलर डिस्क ऑफ 20 mm डायमीटर. हमारे पास एक शीट मेटल है, उस शीट मेटल से 20 mm डायमीटर का हमें ब्लैंक तैयार करना है. कौन सा मटेरियल है, C20 स्टील, और उस मटेरियल की थिकनेस कितनी है, शीट मेटल की थिकनेस 1.5 mm, ठीक है ना. और C20 स्टील की जो शियर स्ट्रेस है दैट इज गिवन एज 294 मेगापास्कल. अब अपन उसको सॉल्व करना है. सो इनिशियली वी विल हैव टू कैलकुलेट द क्लियरेंस. या तो ये दे दिया जाए, मान लो इसी क्वेश्चन में हम लिख दिया गया होता कि क्लियरेंस टू बी टेकन ऑन ईच साइड इज गिवन एज दिस मच, तो यदि हमें दिया गया होता तो हम फिर भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता. सिंस इज दिस केस clearance is not given, that's why we will have to calculate the clearance by using that formula 0.03 t into the square root of the tau. So t is given, it is 1.5 mm, tau is given, it is 294 megapascal. So using this relation we can calculate clearance. Since it is very very small, 0.0823 mm, so it has been taken as 0.1 mm. Roughly it has been taken as 0.1 mm. Since it is a blanking operation,
तो इस केस में जो ब्लैंक का डायमीटर होगा वो डाई का डायमीटर हो जाएगा। तो इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन डाई साइज इज इक्वल टू ब्लैंक साइज, दैट मीन डाई का साइज कितना हो गया 20 mm, ठीक है ना। और जो पंच का साइज आएगा वो कितना आएगा, ब्लैंक साइज माइनस 2c, so blank size minus 2c it will give you 19.8 mm. Okay, so clearance bar 0.1 mm, punch size 19.8 mm, blank size 20 mm. अब मैं आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। ये समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं। टाइम कम बचा है अपने पास? सर आ गया, सर आ गया। आ गया। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसी में से। हम सपोज वी आर गोइंग टू परफॉर्म पंचिंग ऑपरेशन और हमें पंच कट करना है 20 mm का। नाउ कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द डाई एंड पंच। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? we have to, this question is same but we have to perform a punching instead of blanking operation, and here we have to cut a hole of 20 mm diameter. हमें एक होल कट करना है 20 mm डायमीटर का, ठीक है। so can you determine the size of the die and punch? यस सर। निकालो। सबसे पहले किसकी साइज निकलेगी, डाई की पंच की? पंच का सर। पंच की सर। पंच की साइज कितनी आ जाएगी? सेम रहेगी सर। कितनी? 20 डायमीटर। 20 mm, वेरी गुड। पंच का डायमेंशन कितना हो गया 20 mm। अब हमें निकालना है डाई का डायमेंशन। तो डाई का डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 20 प्लस 2 इंटू 0.1। हाँ बिल्कुल सही है, 20 प्लस 2 इंटू क्लियरेंस, ठीक है ना। तो 0.1 mm क्लियरेंस है तो 0.2 mm क्लियरेंस हो जाएगा। तो जो डाई आएगी वो हो जाएगी 20.2 mm की आ जाएगी इस केस में, 20.2 mm। 2 mm। तो यदि पंचिंग ऑपरेशन है तो डायमेंशन कुछ अलग हो जाएंगे, ब्लैंकिंग ऑपरेशन है तो डायमेंशन कुछ अलग हो जाएंगे। सो ये आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो रुकें, अदरवाइज एक और हल्का सा छोटा सा न्यूमेरिकल वो अपन सॉल्व कर देते हैं। यस सर, वो भी देख लेते हैं। चलो, ये लिखा है एस्टिमेट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग अ 20 mm डायमीटर होल थ्रू अ 3.2 mm थिक annealed titanium alloy sheet at room temperature. टेक UTS। UTS का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? व्हाट इज UTS इन दिस केस? इट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल, सिग्मा जिसको अपन बोलते हैं ना, सिग्मा है ये, ओके सर। ठीक है। तो पंच का डायमीटर कितना है 25 mm, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द थिकनेस? इट इज 3.2 mm, ठीक है। एंड सीरीज टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो गिवन। So you can determine, you can calculate the punching force. इसमें हमें स्प्रिंग फोर्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है? We have to calculate punching force. So you can utilize this formula. ये वाला इक्वल टू एल टी टाई एल टी इंटू 0.7। इसमें टाउ नहीं दिया गया है, सिग्मा दिया गया है। टी हमें दी गई है, थिकनेस हमें दी गई है, एल यू हैव टू कैलकुलेट क्योंकि ये डायमीटर है तो पाई डी आ जाएगा वहां पे। So this is equal to pi d into t into 0.7 sigma। बताओ कितना आंसर आ रहा है? जल्दी सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है रे इसमें तो। एल टी टाउ तो है किला, एल अपन को पता है पाई इंटू 3.2 mm, ठीक है ना। नो नो, पाई इंटू 25, पाई इंटू 25। थिकनेस कितना है 3.2, सो पाई इंटू 25 इंटू 3.2 इंटू 1000। और MPa मेगा पास्कल, आप उसको पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो। यूनिट का ध्यान रखना है इस केस में आप, कि मेगा पास्कल का होता है मीट 54,950 पास्कल आ रहा है। गलत है, गलत है। देखो पास्कल तो फोर्स है, न्यूटन